Hello all, I welcome you all to EduTap. So if you are someone who is thinking कि NABARD grade examination की preparation करनी चाहिए, if you are complete beginner, you want to know about this examination, you want to know कि 2026 को अगर हम target करें तो expected date क्या रह सकती है notification की plus examination की expected dates क्या रहने वाली है so that आप अपनी strategy उस तरीके से बना सको. Not only that, अगर आप check करना चाहते हो कि whether you are eligible for this examination or not, so all these things I am going to discuss in this particular video. So this is going to be a complete beginner guide for NABARD grade A. So all those who are beginner, you can watch this video for the complete information. But before I start, I wanted to tell you all about the initiative taken by EduTap, especially those who are beginners. If you want set of previous year questions, which are very important, right? Then if you want syllabus or strategy for this examination, you can download this guidebook, and link for downloading you will be getting it in the description box. Just click on the link, register yourself and download this very important guidebook for yourself, right? So with that, let's start the video, and first let me tell you what all topics we are going to discuss here. Okay, what all we are going to discuss about this particular examination. So students, first I'm going to tell you ki when can you expect the notification of NABARD grade A 2026 exam, then what can be your probable dates for phase 1 and phase 2. Then we are going to discuss about the eligibility criteria कि क्या eligibility criteria रहता है so that you can check whether you are eligible or not. Then coming to the exam pattern, okay, I'm going to discuss detailed exam pattern. Not only that, what is the syllabus for NABARD grade A exam, plus सैलरी क्या रहने वाली है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की, और आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं, राइट? सो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस them one by one. First is, when is the NABARD grade A notification expected? Now students, if we see for the last cycle, notification का जो cycle है वो काफ़ी डिले हो चुका था, रिक्रूटमेंट साइकिल सॉरी काफ़ी डिले हो चुका था क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी डिले रिलीज हुआ था. बट प्रीवियसली अगर आप देखो तो नोटिफिकेशन की जो टाइमिंग रहती है वो जुलाई एंड या अगस्त में रहती है, तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल टाइम जहां पे आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. लास्ट ईयर डिले हुआ था, नहीं ये बिल्कुल नहीं लेके चलना है कि इस साल भी डिले होने वाला है, हमारे पास काफ़ी टाइम है. प्लीज़ डोंट टेक दैट चांस, राइट? क्योंकि आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप मिनिमम टाइम लेके चलिए. सो आई एम टेलिंग यू दैट नोटिफिकेशन can be around end of July, it can be mid of August or end of August, right? इतना ही max to max delay हो सकता है as per the trend जो हमने देखा है NABARD grade A notification release होने का. So the timing you have is limited. Take it like it is going to be released in end of the July. ठीक है, इतना ही टाइम लेके चलिए कि जुलाई के अराउंड एंड जुलाई या अगस्त में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट. नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके अराउंड 40-45 डेज बाद यू विल सी कि एग्जाम डेट ऑफ फेज 1 विल बी देयर, राइट? आपका फेज 1 कंडक्ट होगा एंड आफ्टर 30 डेज ऑफ फेज 1 आपका फेज 2 भी कंडक्ट हो जाएगा, राइट? सो इफ वी टेक लाइक कि अगस्त में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, लाइक स्टार्टिंग एंड ऑफ जुलाई या स्टार्टिंग में अगस्त में नोटिफिकेशन रिलीज होता है फॉर 2026 एग्जामिनेशन, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका फेज 1 हो जाएगा, राइट? सो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फेज 1 हो जाएगा, देन आपका जो फेज 2 है वो अक्टूबर, आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाता है, राइट? सो दीज आर द प्रोबेबल डेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर इफ नोटिफिकेशन इज रिलीज्ड एज पर द प्रीवियस ईयर्स, राइट? तो अगर जैसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज होता है आ रहा है वैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो यही मोस्ट प्रोबेबल डेट्स है और आपको इनके ही अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देखो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, राइट? तो लेट्स सी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है. तो पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए एंड ऑल दैट. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यू जस्ट नीड अ बैचलर डिग्री. ठीक है, अगर आपके पास आपने ग्रेजुएशन की है, आपके पास बैचलर डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल. बट द कंडीशन इज दैट यू शुड, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, देन आपका जो मार्क्स है वो 60 मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन, right? For the unreserved category students. For the people who are from the SC, ST, PWBD
category, then the percentage is 55%. Clear? So simple eligibility criteria hai, you just need a bachelor degree with minimum 60% marks. Clear? So that is the एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जनरलिस्ट स्ट्रीम. ठीक है, ये हम जनरलिस्ट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं. बट आपने देखा होगा नबार्ड में कुछ स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की भी पोस्ट निकलती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, आप उससे एग्जाम देना चाहते हैं, देन आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए. तो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आपको स्पेशलिस्ट एग्जाम स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, बट फॉर द जनरलिस्ट पोस्ट यू कैन सिट विद एनी डिग्री. राइट? कंडीशन इज कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन. ये एग्रीगेट मार्क्स है. राइट? इंडिविजुअल सेमेस्टर वाइज नहीं, एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज एज. बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मिनिमम और मैक्सिमम एज है इस एग्जामिनेशन की. तो कई सारे बच्चे अभी कॉलेज में होंगे, दे आर क्यूरियस कि वेदर दे आर एलिजिबल विद देयर एज और नॉट. कई सारे बच्चे अभी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? राइट? सो स्टूडेंट्स, जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स. राइट? नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट योर एज लिमिट? So they will provide you the timeline. Okay, they will provide you the timeline or they will provide you the date. जिस डेट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपकी एज क्राइटेरिया मीट हो रही है या नहीं हो रही है. राइट? सो देन देर इज अ एज रिलैक्सेशन ऑल्सो. इफ यू आर अ ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेंट, देन देर इज अ 3 years ऑफ रिलैक्सेशन. राइट? अगर आप SC/ST के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आप 5 year का रिलैक्सेशन ले सकते हो यहाँ पे. तो ये है आपका एज क्राइटेरिया. राइट? तो इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज आपकी 30 है, सॉरी मैक्सिमम एज आपकी 30 है यहाँ पे. सो अगर आपको लगता है कि लाइक ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 1-2 अटेम्प्ट है, सो स्टूडेंट्स आई सजेस्ट कि आपको इसकी प्रिपरेशन और अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए. राइट? क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होंगे फिर आपके पास. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम पैटर्न. क्या रहता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? सो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी हैव सीन दैट देर आर 3 phases. ठीक है, आपका phase 1 होगा, phase 2 होगा और phase 3 होगा जबकि आपका इंटरव्यू होता है. राइट? तो 3 phases में एग्जाम होने वाला है. phase 1, phase 2 एंड इंटरव्यू. phase 1 का पैटर्न देख लेते हैं. तो phase 1 में दे विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम 8 सब्जेक्ट. क्या वो 8 सब्जेक्ट्स हैं? रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD. राइट? अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि मैम ये 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. राइट? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छी चीज क्या है नबार्ड की कि आपके जो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट हैं दैट इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, दीज आर पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन. ठीक है? अब इसका क्या मतलब होता है? नॉन मेरिट सेक्शन मतलब जहां पे आपको सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है. ओके, यू जस्ट नीड टू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है. अगर रीजनिंग की मिनिमम कट ऑफ 3.5 है तो रीजनिंग में आपको मिनिमम 3.5 मार्क्स चाहिए. क्वांट्स की कट ऑफ 4 है तो क्वांट्स में आपको मिनिमम 4 मार्क्स चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिविजुअल मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है इन 5 सब्जेक्ट्स में. रेस्ट आपके जो सब्जेक्ट्स बचे GA, ESI एंड ARD, दे आर पार्ट ऑफ मेरिट सेक्शन. अब ये मेरिट सेक्शन का पार्ट है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको GA, ESI और ARD में मिनिमम sectional cutoff के साथ साथ you are required to clear the overall cutoff. Right? You can see GA, ESI and ARD is of 100 marks and from this 100 marks you are required to clear the overall cutoff. Right? So phase 1 की जो एक overall cutoff बनती है, for example it is 45 for 2026 examination. So you will require 45 marks minimum from these 3 subjects in order to clear the कट ऑफ phase 1. ठीक है? उसके अलावा इनकी इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है. लाइक अगर ARD की इंडिविजुअल कट ऑफ 6 है तो ARD में आपके मिनिमम 6 मार्क्स होने चाहिए और अगर आपके सारे मार्क्स मिला के 45 बनते हैं देन यू विल क्लियर phase 1 ऑफ द phase 1 एग्जामिनेशन. राइट? चलो, ये phase 1 का पैटर्न रहा. Coming to phase 2. Okay, before moving to phase 2, so students, each question will carry 1 mark. So you can see 200 questions will be there of 200 marks, right? So you can give examination in bilingual. It can be given in Hindi as well as in English, right? And total time आपको दिया जाएगा 120 minutes का. यहाँ पे sectional timing नहीं होगी. So overall आपको 120 minutes दिए जाएंगे to complete your entire paper. Clear? So composite time है, sectional timing नहीं है. कमिंग टू द मेंस विच इज phase 2. तो phase 2 में स्टूडेंट्स आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2.
पेपर 1 है वो जनरल इंग्लिश का होगा. दिस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव का मतलब है आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है, डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग करनी है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चंस रहता है रिगार्डिंग एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग. सो यू विल नीड टू टाइप दीज क्वेश्चंस. ओके, इस क्वेश्चन ऐसे से कोई क्वेश्चन है तो आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा. सो देयर विल बी 3 क्वेश्चंस इन जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट which will be of 100 marks and time duration that will be allotted to you is 90 minutes, right? तो यहाँ पे आपको ये आंसर्स टाइप करने हैं थ्रू कीबोर्ड, आपको लिखना नहीं है. यू वोंट गेट पेन पेपर फॉर राइटिंग दीज आंसर्स. क्लियर? सिमिलरली वी हैव पेपर 2. लाइक पेपर 1 आपका खत्म हो जाएगा, यू विल गेट अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दैट ब्रेक आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा. पेपर 2 फॉर जनरलिस्ट स्ट्रीम यू विल गेट फ्रॉम द सब्जेक्ट ESI एंड ARD. इफ यू आर फ्रॉम द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम देन आपको जो सब्जेक्ट है लाइक एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपका फाइनेंस है तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, IT है तो IT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट? जनरलिस्ट वालों को ESI एंड ARD के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो ऑब्जेक्टिव आपके 30 मार्क्स के रहते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं 30 क्वेश्चंस, राइट? एंड डिस्क्रिप्टिव यू विल बी गिवन 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 2 विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी ऑप्शंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 4, राइट? सो 4 आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है ESI ARD मिला के, जो कि आपके मार्क्स होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, राइट? अगेन यहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है, यू विल नॉट राइट एनीथिंग, यू हैव टू टाइप. ठीक है? सो यू कैन सी द मेन्स इज ऑल अबाउट मोस्टली डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 50% वेटेज इंग्लिश का ही है, 50% इज ESI एंड ARD जहाँ पे आपका 50 डिस्क्रिप्टिव है प्लस 50 आपका ऑब्जेक्टिव है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेज 2. नाउ स्टूडेंट्स फेज 2 में भी अगेन इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी होगी प्लस एक ओवरऑल कट ऑफ होगी. आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, बट कट ऑफ क्लियर करने से यहाँ पे बात नहीं बनेगी क्योंकि जो मेंस के मार्क्स हैं दे विल बी काउंटेड फॉर योर फाइनल मेरिट. ठीक है? तो मेंस प्लस इंटरव्यू, मेंस के बाद यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू में आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स मिलेंगे. मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी. अगर आपके मार्क्स सफिशिएंट है देन यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ NABARD ग्रेड ए. सिलेबस क्या रहता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का? बिकॉज पैटर्न हमें पता चल गया है बट पढ़ना कैसे है उसके लिए हमें सिलेबस का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, राइट? तो सिलेबस स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वो मेंस के लिए सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में, राइट? फेज 1 के लिए देयर इज नो सिलेबस. ESI एंड ARD का जो सिलेबस है वो कॉमन ही रहता है आपका फेज 1 एंड फेज 2 के लिए, बट रेस्ट जैसे कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, उसके लिए कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, राइट? बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं. सो फॉर यू कैन सी फॉर पेपर 1 इंग्लिश का जो रहता है उसमें ऐसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आ सकती हैं. ठीक है? ये सिलेबस का पार्ट है. कमिंग टू द ARD पार्ट, तो ARD के लिए अगेन स्टूडेंट्स एक बहुत डिटेल्ड सिलेबस है और दिस सिलेबस इज सेम फॉर योर फेज 1 एंड फेज 2. ठीक है? ऐसा नहीं है कि फेज 1 के लिए कुछ और पढ़ना है, फेज 2 के लिए कुछ और पढ़ना है. तो you can see topics like agriculture, soil, water, then plantation, horticulture, animal husbandry, fisheries is there, forestry is there, ecology and climate change is also there. Then there is a rural development part. Okay, this is all part of your ARD syllabus. Now here rural, there are few schemes mentioned here like मनरेगा, NRLM. तो ये भी आपको कवर करनी है. ये आपका ARD करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है. क्लियर? So this is the syllabus for ARD. Coming to ESI. Now students, ESI के लिए भी again आपको syllabus दिया गया है, right? Okay. So ESI के लिए भी again आपको detailed syllabus दिया गया है. तो ये syllabus will be valid for both phase 1 and phase 2. तो आप इस syllabus का reference लेके phase 1 और phase 2 की preparation कर सकते हैं. Now coming to the सब्जेक्ट जहाँ पे आपको सिलेबस नहीं दिया गया है जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें क्या करना है? तो यू कैन सी हियर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन कवर फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. आपके जो जनरल बैंकिंग वाले क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है सेम वैसे ही रहता है, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है. ठीक है? कमिंग टू कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग, अगेन स्टूडेंट हियर इज द लिस्ट ऑफ कंप्यूटर मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस. तो ये आपने कवर करना है फॉर योर
कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग पार्ट, ठीक है। और जीए की अगर हम बात करें तो जीए इज जनरल अवेयरनेस, वहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका जो डे टू डे न्यूज़पेपर में आ रहा है, यू हैव टू कवर इट, ओके। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपने कवर करनी है फॉर जनरल अवेयरनेस। तो उसके लिए आप कोई न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, या फिर आप कोई मैगजीन रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको मंथली या वीकली जो करंट अफेयर है वो कवर्ड मिले, राइट। सो दिस इज द सिलेबस। एंड नाउ कमिंग टू द सैलरी। सो स्टूडेंट्स, जो सैलरी है दैट इज अगेन गिवन इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। तो नोटिफिकेशन के जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख इज द ग्रॉस सैलरी दैट यू विल बी गिवन मंथली। तो देर इज गुड सैलरी इन दिस एग्जाम, इन दिस पर्टिकुलर जॉब। जो सैलरी है वो अच्छी है, ऑफिसर लेवल की आपको सैलरी मिलती है। आपको जो बेसिक सैलरी है उसके साथ साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, राइट। तो आपका जो ग्रॉस इन हैंड सैलरी होती है वो अराउंड 1.3 से 1.5 लाख पर मंथ हो जाती है, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट होता है हर मंथ। तो यू कैन सी सैलरी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपको सैलरी कम मिलेगी। अलाउंसेस काफ़ी सारे हैं, बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। तो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं एज ए एम्प्लॉय इन नाबार्ड वो बहुत अच्छे हैं। एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है। आपके 5 डेज वर्किंग होते हैं। तो यू कैन सी इट इज़ क्वाइट गुड जॉब टू परस्यू, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी सेटल दिखती है और सैलरी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल, ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो जॉब प्रोफाइल क्या रहता है स्टूडेंट्स आपका। सो अगर आप नाबार्ड में एज ए नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो मोस्टली ऑफिस बेस्ड रहेगा, ठीक है। ओकेजनल आपको मीटिंग्स के लिए या फिर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, बट मोस्टली आप ऑफिस में रहते हो। आपके पास स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, आपको उनको पढ़ना होता है, आपको उनको रिव्यू करना होता है। यू हैव टू बिल्ड अ रिपोर्ट अराउंड इट, ओके। यू हैव टू मॉनिटर थिंग्स, यू हैव टू हैव मीटिंग विद द बैंकिंग ऑफिशियल्स, ठीक है। जो चल रहा है, क्या चल रहा है, एसएसजी में क्या चल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ती है। तो जो नाबार्ड के जितने भी प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली यू विल बी मॉनिटरिंग देम, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज थिंग्स वर्क, ओके। जो भी आप रिपोर्ट बनती है आपकी वो हायर लेवल पे जाती है फॉर अप्रूवल। सो द थिंग learning opportunity in NABARD is immense, and job profile is also very good because you are directly involved with policy and policy making, right. So that is the overall job profile of NABARD grade A officer. So with this I'll end the video, but before I end I wanted to show you our courses. So students, if you want to prepare for this examination, you can see काफ़ी अच्छी opportunity है, right. So we have also some courses for the preparation of this examination. So you can see our gold course and silver course. If you want material for phase 1 phase 2 an interview, you can buy our gold course. And if you are like कि मेरा non merit section मैं कर लूँगा या कर लूँगी, then you can go for the silver course. Not only this students, you can also purchase our combo courses if you want to prepare, if you want to do combined preparation of NABARD, RBI, SEBI, etc. So with this I'll end the video. I hope it helped. Thank you.